गूगल मीट भाई साहब आपको बाहर निकाल रहे हैं. This call is now being recorded. ओके. Okay, so starting with the topic what we have done in the last session. Okay, uh, in the previous topic, in the previous sessions, we have started with the IP packet delivery. Okay, I hope that I'm audible and the recording is also started and I'm also visible. Okay, so chalte hain. So as we know that in IP packet delivery, we have lot of terms which are involved in this a journey that start from the correspondent node, then it will goes to the home agent to the home network as you can see on the left hand side, and then the data will be sent to the mobile node which is present in the foreign network. Okay, so regarding IP packet delivery we have seen, and then after that how mobile node will come to know about the presence of the agent. Okay, how how your mobile node will contact with the agents. Okay, आपका मोबाइल नोड कैसे कांटेक्ट करेगा. सो वी हैव टू मेथड टू मैकेनिज्म फॉर द एजेंट डिस्कवरी, हाउ द एजेंट will discover itself. So we have two methods. Okay, and those two methods are nothing but the agent advertisement and agent solicitation. Okay, so the first one, agent advertisement, in this method the agent is going to say all the all the nodes which are present in the area that buys up. I'm present in this location. If any one of you wants my help, then please contact me or do message me whatever. So मुझे contact करो, then I will help you out for the same. Okay, so ऐसे जितने भी mobile node present रहेंगे, so all the mobile nodes will contact to that particular agent. That's a foreign agent for all the nodes. Okay, so after agent advertisement we have this packet, that is agent advertisement packet. This is the format of the packet, and which is it is of 32-bit and having different fields. Okay, the upper part is the is the ICMP packet actually. ICMP packet is the normal packet which is sent for some information, for alert, for some giving some information. So ICMP packet is used, and along with that particular ICMP packet, which is nothing but the advertisement packet also. So along with this packet we have a mobility extension also, because we are going to have the it is related with the mobility management. So some extension, some fields are added as a part of the mobility extension to the existing one. Okay, so this is the complete agent advertisement packet along with the mobility extension. Then we have agent solicitation. Okay, in agent solicitation your mobile node is going to send the messages to the routers which are present. Okay, so they are going to send the messages, one message per second. So तीन message in first slot they will send the three messages, and after three messages मतलब के three solicitation भेजेगा, one per second, as soon as any of the mobile node enters into the foreign network. ठीक है, जब भी कोई मोबाइल नोड किसी न्यू एरिया में एंटर करेगा, इट विल सेंड थ्री सॉलिसिटेशन मैसेजेस टू द एजेंट्स. ओके, मतलब राउटर्स को, and it will decrease the you know uh, number of messages whatever it is sending. So it will decrease the rate of solicitation exponentially to avoid the flooding, to avoid the flooding of network. ठीक है, आपका network flood नहीं होना चाहिए with the too many messages which are being sent by the mobile node, because you are not going to have, you are not the one mobile node which is present in the foreign network. Many mobile nodes which are from multiple, which are from numerous locations, which are coming from different locations, are in that particular foreign network. Okay, so the number of solicitation messages may be in 100 lakhs, कितने भी हो सकते हैं. So it may flood the network, and it may put the network on risk. Okay, so we don't have to do that, so we have to decrease it. Whatever is there, so they will get the response. Okay, the mobile node will get the response, and after they will respond, there is a mobility binding we'll learn later. After this slide we have seen that we have a registration part. Okay, whenever any mobile node enters into the new location, then there is a registration part which has to be done by all the mobile node.
if the mobile node is present in the home area only, home network only, then the registration will be directly, the registration will be directly with the help of home agent. Okay, you can see the right hand side. If your mobile node is presently is it is currently present in the, it is currently present in the home network only, then you have to refer the right hand side diagram. Okay, and if your mobile node is present in the foreign network, then the registration will be done via foreign agent. Okay, so that's why we have a foreign agent in the middle of the mobile node and home agent. Okay, that we have already seen. Why I'm repeating all this thing, because the topic we are going to cover today is related with that only. Okay, and just आज हमारे पास में टॉपिक कम है तो उसके लिए एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है. Okay, so this is regarding the registration request. Okay, so this is regarding the registration process, that the registration request will be sent by the mobile node to the foreign agent, then foreign agent will send this registration request to the home agent. It will confirm from the home agent home network, and then after confirming, the foreign agent is going to confirm and it will provide the care of address and it will perform the mobility binding. Okay, then after performing the mobility binding, it is the lifetime of the mobility binding is also limited. Okay, which is not for जिसका बोलते हैं ना कि लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है. लाइफ टाइम मतलब उसका ड्यूरेशन. ओके, द ड्यूरेशन ऑफ दैट बाइंडिंग इज फॉर सम टाइम ओनली. ओके, फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, after that amount of time, the द वैलिडिटी इज एक्सपायर्ड. ओके, मतलब कि जो उनकी बाइंडिंग होती है वो एक्सपायर हो जाती है, एंड मोबाइल नोड हैज टू री रजिस्टर द थिंग्स. ओके, वो अगर री रजिस्टर नहीं करेगा, सो इट वोंट बी एबल टू रिसीव द पैकेट्स विच आर कमिंग फॉर हिम. ठीक है, तो जो मोबाइल नोड फॉरेन में रहकर भी अपने पैकेट को रिसीव कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा अगर वो री रजिस्टर नहीं करता है तो. ठीक है, ओके, सो वी हैव अ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, वी हैव अ रजिस्ट्रेशन रिप्लाई. ओके, सो ये तो हमारा हम लोग ने देख लिया. दिस इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट. ओके, इन द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, हम लोग ने कल स्लाइड देखे नहीं, जस्ट हम लोग ने थोड़ा उसको स्लोली मूव कर लिए. रजिस्ट्रेशन जो रिक्वेस्ट होती है, इन दैट यूडीपी पैकेट्स आर यूज्ड. ओके, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट. ओके, सो इसमें यूडीपी पैकेट्स यूज होते हैं, एंड देन IP source address of the packet is set to the interface address of the mobile node, and IP destination address is that of the foreign agent and home agent. Okay, और होम एजेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द केयर ऑफ एजेंट. अगर फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, who will do the registration, your mobile node is going to do the registration. Okay, so if mobile node is going to do the registration, then depending on the location, if it is present in the foreign network, then क्या करना पड़ेगा, source IP तो उसी उसका खुद का रहेगा और जो destination रहेगा वो foreign agent का, यानी कि बेसिकली इसका रहेगा लेकिन आपका इसके वाया जाएगा. Okay, तो depending on the location, the packet will be sent. The UDP destination port is set to 434. 434 यहाँ पर कुछ होगा कोड है. So we have a UDP. आपका UDP का destination port is set to 434. UDP is used because of the low overheads and better performance compared to the TCP and wireless. मतलब अब आपका वायरलेस, आपका जो TCP है वो तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, रिलायबल है, सब कुछ है, बट ये थोड़ा फास्ट है, इसके लिए इसको यूज़ कर लेते हैं कभी कभार. The fields are relevant for mobile IP registration request follow as UDP data. तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट के बाद में ये you can see the field which are present in this registration request, जो कि अगेन 32 बिट का है. लाइफ टाइम भी गिवन है इसकी, जिसके 16 बिट उसकी लाइफ टाइम होती है, एंड वी हैव डिफरेंट स्मॉल 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 फील्ड. दिस इज द टाइप 1. यहाँ पर अलग अलग मतलब के अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ये अलग अलग टाइप्स हो सकती है. होम होम एड्रेस है, होम एजेंट कौन है, केयर ऑफ एड्रेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक्सटेंशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है. जस्ट रिमेंबर 2 3 4 इन्फॉर्मेशन उसके अंदर की, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. रजिस्ट्रेशन रिप्लाई, इसमें भी कुछ होता है. रजिस्ट्रेशन रिप्लाई विच इज कन्वेड इन द यूडीपी पैकेट कंटेन्स अ टाइप फील्ड सेट टू 3. यहाँ पे टाइप फील्ड सेट टू 3, यहाँ पर टाइप फील्ड 1 है, यहाँ पर टाइप फील्ड 3 है, सेट है. कोड इंडिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर जो कोड सेक्शन है जो कि अगेन 8 बिट का है, विच इंडिकेट व्हाट, कोड क्या इंडिकेट करता है, अगर जीरो कोड, अगर रिप्लाई में अगर जीरो कोड आया तो मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्टेड है. ओके, अगर 1 है तो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड है बट सम एरर है. ठीक है, अगर कोड 65 है तो मतलब कि कुछ तो एरर है,
कुछ तो मतलब के FA ने यानी कि फॉरेन एजेंट ने इसको डिनाई किया है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दिस कोड मे बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज द कोड फील्ड। यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं 1 है, 2 है, 65 है, 66, 67, 68, 69, सो ऑल दिस कोड मे बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सो जो जो रिजल्ट रहेगा उसके हिसाब से कोड रहेगा, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। और उसकी लाइफ टाइम क्या है, उस पर्टिकुलर पैकेट की लाइफ टाइम, मतलब उस पर्टिकुलर मोबिलिटी बाइंडिंग की लाइफ टाइम क्या है, तो वो भी डिफाइन होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये जो मोबिलिटी बाइंडिंग है, ये कहा गया कि भाई ठीक है, ये आपको दिया, आपको दी जाती है 1 घंटे के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सो इफ इट इज ओनली फॉर 1 आवर, इट मीन दैट दे द मोबाइल नोड which is currently present in the foreign network can receive the parcel, can receive the messages from its home location, from its home agent। okay, तो उसके लिए सर्विस अवेलेबल रहेंगी 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद में क्या हो जाएगा, मोबिलिटी बाइंडिंग ब्रेक हो जाएंगी, यानी कि नाउ जो एक बाइंडिंग हुई थी, दैट binding is now no more। okay, so your mobile node which is currently present in the foreign network will not be able to receive the messages, the data information, कुछ रिसीव नहीं कर पाएगा। तो उतनी लाइफ टाइम खत्म होने से पहले पहले, उतना एक्सपायर होने से पहले पहले उसको री रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगी। वापस से री रजिस्टर करेगा, वापस से रिक्वेस्ट जाएगी, रिप्लाई आएगा और उसको फिर रजिस्टर करेंगे, अगेन उसकी लाइफ टाइम सेट होगी, ठीक है। ये इसके लिए करते हैं कि ज़्यादा गर्दी जमा ना हो, ज़्यादा रश जमा ना हो, ठीक है। वरना सब लोग को अगर आप लाइफ टाइम की वैलिडिटी देते बैठेंगे, हाँ ठीक है जब मर्जी आए आओ जाओ, तुम्हारी मर्जी, कोई मसला नहीं, अपना ही घर है, ठीक है। जैसे होते हैं ना, आप बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको वीज़ा दिया जाता है 1 महीने का, आपको विजिटिंग दिया जाता है 1 महीने का, 2, 3, 4 महीने का, जो भी देते हैं। सो दैट इज गिवन ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो भाई इतना रुको, उसके बाद में चलो अपने घर, या उसको आप क्या करो, उसको आप मतलब री रजिस्टर करके उसको रिन्यू करो, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो रिन्यू करो, नहीं तो फिर चलो वापस जाओ अपने घर, ठीक है। सो दे कीप इन द सिचुएशन लाइक दैट। सो वी हैव ऑल्सो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मेथड which is done in the आपके मोबिलिटी आईपी, मोबाइल आईपी। ओके, सो ये जो मोबिलिटी बाइंडिंग है, इसीलिए इट इज केप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, तो उसकी भी फील्ड यहाँ पर होती है, और उसकी फील्ड के अंदर उसका टाइम मेंशन होता है, मतलब टाइम बोले तो जितने भी देर के लिए उसको मोबिलिटी बाइंडिंग को रखना है। then these are the different codes you need to remember। I think इसमें से कुछ कोड आपको रिमेम्बर करना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगे, सो दैट 65 to 69 ये अगर कोड आता है तो इट इज डिनाइड बाय द फॉरेन एजेंट, और अगर नीचे वाले कोड आते हैं तो इट इज डिनाइड बाय द होम एजेंट, ठीक है। तो सिंपल है। हाँ, coming to the fresh topic, what we have to do today is regarding the tunneling and encapsulation। I think these two topics we have already seen, ठीक है। In the previous diagram we have already seen the this encapsulation and tunneling। This is the tunneling, you can see over here, ये जो दिख रहा है आपको लाइनिंग यहाँ से डॉट डॉट लाइनिंग है, this is the tunnel। okay, so why tunneling is required, you know the reason why tunneling is required, because we have to send the data, we have to send the information, we have to send the packets which are intended for the mobile node, but currently it is not present in its home network, that's why we are sending the data via this tunnel, ठीक है। तो आपको ये पता है, फिर भी थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके और देखेंगे। दैट इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ से बताया था इनकैप्सुलेशन, ये डायग्राम अभी भी इसके अंदर प्रिंट हो गया है। सो इनकैप्सुलेशन भी हम लोग अलग से दोबारा देखेंगे कि वॉट एवर पैकेट विच इज सेंड बाय द करस्पॉन्डेंट नोड फॉर मोबाइल नोड, ठीक है, टू द मोबाइल नोड, फर्स्ट इट विल रिसीव बाय द होम एजेंट, देन होम एजेंट विल इनकैप्सुलेट दैट पर्टिकुलर पैकेट। तो आपका पैकेट उसके ऊपर अपना पैकेट लगाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर सोर्स क्या डालेगा, अपना डालेगा, और डेस्टिनेशन क्या डालेगा, फॉरेन एजेंट का डालेगा, ठीक है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, तो फिर ये आपके टनल में बैठ के वो पैकेट आएगा आएगा आएगा, इट विल बी रिसीव बाय द फॉरेन एजेंट नाउ, एंड देन फॉरेन एजेंट विल रिमूव द आउटर पैकेट, ठीक है, आउटर पैकेट रिमूव करेगा, तो देखेगा तो अंदर दूसरा पैकेट निकला, उसके ऊपर चेक करेगा, तो चेक करने के बाद पता चलेगा कि भाई ये तो मोबाइल नोड फला फला मोबाइल नोड के लिए, सो इट विल फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर पैकेट और डेटा और इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस टू दैट पर्टिकुलर मोबाइल नोड। ओके, तो उसको आगे फिर वो फॉरवर्ड करेगा। सो इनकैप्सुलेशन हो रहा है और टनलिंग भी हो रहा है, ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, बट थोड़ा सा उसको विस्तार में और देखते हैं, ठीक है। क्या स्लाइड क्या अलग से टॉपिक है देखते हैं।
देन वी हैव अ रिवर्स टनलिंग ऑल्सो. मैंने आपको बताया था कि while sending the reply, your mobile node will not, instead of sending the reply from via foreign agent, then via home agent, and then correspondent node, your mobile node has the source IP address. ठीक है, correspondent node का पैकेट उसको मिला, जब पैकेट उसने लिया तो उसमें उसका एड्रेस था, तो पता चल गया मोबाइल नोट को ये कि इसका एड्रेस क्या है. ठीक है, this is the situation, this is the situation where your CN, your correspondent node is the fixed node. Okay, it is not the mobile node. ठीक है, ये mobile node नहीं है. Correspondent node right now in this situation, the correspondent node is the fixed node. Okay. Okay, so instead of sending the reply via foreign agent, then via home agent, then to the CN, it will send the reply directly to the CN, that is correspondent node. Okay, तो यहाँ पर कुछ लोगों को बात जो है ना तो हजम नहीं होती है. ठीक है, जब हजम नहीं होती है तो फिर उनके लिए एक सोल्यूशन है जिसका नाम है रिवर्स टनलिंग. जहाँ से आया पैकेट वहाँ से वापस जाएगा, तो जो टनल से आया वही से रिवर्स जाएगा. चलो देखते हैं आगे. ठीक है, सो ये तीन टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं. विल ट्राई टू कंप्लीट एंड विल कंप्लीट इंशाल्लाह. Okay, so starting with the tunneling and encapsulation. So this mechanism used for forwarding packets between the home agent and the care of address. Okay, so ये जो होता है basically ये किस लिए है, टनलिंग का मैकेनिज्म है किसके लिए. लेट मी शो विद द फ्रेश डायग्राम. थोड़ा सा डायग्राम हम लोग फ्रेश देखते हैं क्योंकि वो डायग्राम में बहुत घान हो गई है. ठीक है, सो आई एम गोना शो यू विद द हेल्प ऑफ द फ्रेश डायग्राम. डायग्राम कहाँ से मिलेगा अपनों को. हाँ, एक सेकेंड ना. टनलिंग वेयर इज इट, ये वाला है. एग्जाम्पल नेटवर्क आईपी पैकेट डिलीवरी. हाँ ठीक है. ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, नई स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल वी. कि क्या है कि हम लोग इसके अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे इसके लिए, और स्लाइड में रहेगा तो इसके अंदर हम लोग इजीली कर लेंगे. ओके, तो चलो इसका प्रेजेंटेशन ऑन हुआ. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम. Okay, all the things are clear with you that your home agent is there, your router your correspondent node is there, home network, foreign network. ठीक है, and this is the correspondent node third party जो कि communicate करना चाहता है आपके मोबाइल नोड से. Okay, so let us see what is this mechanism used. यानी कि कौन सा mechanism, this is they are talking about the tunneling. Okay, so regarding the tunneling, this is the mechanism used for forwarding packets between home agent and the care of address. Okay, तो दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं. So you can see we have made the tunnel. Okay, this is the mechanism from which the packets are being forwarded from your home agent to the care of address. And you know the address of the foreign agent, the address of the foreign agent is nothing but the COA. As you know, the address of the address of the foreign agent is COA, that is care of address. ठीक है, बहुत बुरा आ रहा है लेकिन समझ के लो. So we have a address of foreign agent as a care of address. Okay, so you can see this one. This mechanism used for forwarding packets between HA, that is home agent, and your care of address. So your care of address. ठीक है, तो पहला point clear. A tunnel establishes a virtual pipe. So this is basically a virtual pipe. Okay. So this is basically a virtual pipe. For data packets between a tunnel entry and tunnel endpoint. So this is the entry point. ठीक है, ये हमारी entry है, tunnel की entry, और ये टनल का एंड पॉइंट है. ठीक है, देखो हालांकि हम लोग को ये पॉइंट कितने सिंपल लग रहे हैं कि सर ये तो सिंपल, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि दीज आर दी, सो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द टनल एंड दिस इज द एंड पॉइंट. बट दिस स्टूपिड स्टेटमेंट आल्सो वी आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन. यू नो, ये भी लिखना आपको जरूरी है. हमको लगता है कि स्टूपिड से मतलब स्टेटमेंट्स है, बट वी हैव टू राइट दी स्टेटमेंट इन द एग्जामिनेशन सो दैट आर क्वेश्चन का आंसर विल बिकम सो थोड़ा सा इनफ आंसर्स हम लोग को लगेगी. Okay, so this is the entry point and this is the end point. That's why I have added all the statement in the slides also.
Packets entering a tunnel are forwarded inside the tunnel and leave the tunnel unchanged. Okay, so यहाँ से भाई जाएगा, यहाँ से निकलेगा, कोई changes नहीं होगा. The tunneling, that is sending a packet through a tunnel, is achieved by using the encapsulation. How it is done? So this is done using the encapsulation. Okay, चलो वापस से थोड़ा सा flashback में जाते हैं, वापस से revise करते हैं. So आपके CN ने, आपका correspondent node wants to send the data. ठीक है, एक पैकेट भेजा इसने. ठीक है, that packet will first will be received by the router, that is the home agent. Okay, तो आपके पास में आ गया अभी, तो मैं यहाँ, चलो वो पैकेट को मैं यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ. अब जब पैकेट यहाँ पे पहुंचा तो पैकेट को बताया गया कि भाई द डेस्टिनेशन इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. ओके, द डेस्टिनेशन इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, वो बाहर गया हुआ है. ठीक है, वो कहीं और गया हुआ है. तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपका, आपके आपके पैकेट के ऊपर. अच्छा, होम 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 आपके होम एजेंट को पता है, आपके होम एजेंट को पता है कहाँ गया है. कैसे कैसे पता है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में. आपके होम एजेंट को इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल नोड विच इज करंटली प्रेजेंट इन द फॉरेन नेटवर्क. ये आपके होम एजेंट को पता है. कैसे पता है? बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इसके लिए पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में सारे काम है. तो भाई साहब ने, मोबाइल नोड ने पहले अपने आप को रजिस्टर किया होगा, फॉरेन एजेंट के पास में रजिस्टर किया, अपने आप को रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजा. तो मोबाइल नोड की रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पहले आई आपके फॉरेन एजेंट के पास में. फॉरेन एजेंट ने क्या किया, फॉरवर्ड किया आपके होम एजेंट को. होम एजेंट कंफर्म करेगा, हाँ हाँ ये हमारा बंदा है. हम लोगों ने कल लेक्चर में यही सब बात की है ना. तो योर होम एजेंट विल कंफर्म एंड वेरीफाई दैट हाँ ये हमारा बंदा है विच इज करंटली इन द फॉरेन नेटवर्क. ओके, हमारा बंदा है, ओके है, ये वेरीफाइड है. ठीक है, तो उसका रिप्लाई आएगा फिर. ठीक है, उसका रिप्लाई आएगा, रजिस्ट्रेशन का रिप्लाई आएगा. रजिस्ट्रेशन रिप्लाई विल बी रिसीव बाय द फॉरेन एजेंट एंड देन मोबाइल नोड को क्या करेंगे हम लोग, एक केयर ऑफ एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपके होम एजेंट को पता है कि आपका मोबाइल नोड कहाँ पर अभी घूम रहा है. ठीक है, तो आपके होम एजेंट को पता हो गया ये चीज़. फिर जब ये पैकेट सेंड करेगा, चलो ये अब ये पैकेट आपका घूमते घूमते आया इसके पास में, जब पता चला ये तो है नहीं, बाहर गया हुआ है, तो व्हाट योर होम एजेंट इज गोइंग टू डू, योर होम agent is going to your home agent is going to send this particular packet by covering it with its packet. okay, वो खुद का पैकेट लगाएगा और उसके ऊपर क्या लगाएगा, हेडर लगाएगा. ठीक है, हेडर मतलब कि उसका एड्रेस वगैरह जो भी है, तो हेडर, अपना हेडर लगाएगा. ठीक है, चलो पहले से जो ये था आपका डेटा और ये था हेडर. ठीक है, पहला जो पैकेट आपके पास में आया उसके ऊपर से और एक हेडर लगा. ठीक है, अच्छा पहले जो हेडर लगा हुआ था उसके अंदर क्या क्या एड्रेस थे, सोर्स और डेस्टिनेशन. द सोर्स वाज CN, द सोर्स वाज CN एंड द डेस्टिनेशन वाज MN. ओके, जब ये पैकेट के पास में पहुंचा, सॉरी जब ये पैकेट HA के पास में पहुंचा, होम एजेंट के पास पहुंचा, देन होम एजेंट will check the packet and will see, okay you are coming from CN. okay, so you are the CN. okay, and you wants to reach at the mobile node, but sorry bro, the mobile node is not currently present in this area. okay, तो उसके पास में, तो वो क्या करेगा फिर, अपना अपना पैकेट लगाएगा, अपने अपने हेडर लगाएगा, बिकॉज ही नोज वेयर द मोबाइल नोड इज करेंटली प्रेजेंट. ओके, योर होम एजेंट इज हैविंग एन आइडिया अबाउट वेयर द मोबाइल नोड इज करेंटली प्रेजेंट. सो इसने अपना हेडर लगाया, एक ऊपर से और पैकेट लगाया, अपना अपना हेडर लगाया, और वो हेडर के अंदर उसने फिर अपना सोर्स डाला. अच्छा, उसमें सोर्स डेस्टिनेशन क्या रहेगा, the source address will be the HA, the source address will be the HA and the destination HA will be the care of address. because ये care of address हमारे इसको पता है कि ये care of address पे मोबाइल नोड मिल पाएगा. जैसे हम लोग, हमारे घर के बाजू में फ़ोन होता था, हमारे घर पे फ़ोन नहीं होता था, तो किसी को कॉल करना है तो वो बोलेंगे भाई इसका मोबाइल नंबर तो नहीं है, लेकिन ये एक नंबर है जिसको हम लोग केयर ऑफ एड्रेस बोलते हैं, तो अगर ये नंबर पे कॉल करेंगे तो वो बंदा मिल सकता है. ओके, सो ये हमारे केयर ऑफ एड्रेस के पास में है. तो इसके हेडर में जो आउटर पैकेट है उसमें जो सोर्स जाएगा वो HA का जाएगा. ओके, और डेस्टिनेशन किसका जाएगा, केयर ऑफ एड्रेस का जाएगा. ठीक है, तो ये चला गया और ये आपके पैकेट को टनल में एंट्री करवा दी. ओके, नाउ योर पैकेट हैज एंटर्ड इनटू द टनल एंड इट विल ट्रैवल टू दी केयर ऑफ एड्रेस. ठीक है, अब यहाँ से जब उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया योर पैकेट विल रीच एट द केयर ऑफ एड्रेस का डेस्टिनेशन. ठीक है, यहाँ पहुंच गया, फॉरेन एजेंट विल रिसीव इट, फॉरेन एजेंट विल रिसीव दैट पर्टिकुलर पैकेट और उसको खोलेंगे. अच्छा ये हमारे लिए, ओके चलो हम लोग के लिए था. कहाँ से आए हो आप, HA से आए हो. ठीक है, जो आउटर पैकेट पे जो उसको जो नजर आ रहा है वही बोलेगा.
तो आउटर पैकेट पे क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, एच ए से आ रहे हो, कहाँ जाना है आपको, एफ ए, एफ ए तो हम ही है। फिर वो क्या करेंगे, पैकेट ऊपर ऊपर का फाड़ेंगे तो अंदर से और एक पैकेट निकलेगा, ठीक है। सो वन मोर पैकेट आएगा, तो वन मोर पैकेट को हम लोग वापस चेक करेंगे, अच्छा इसमें इस पे सोर्स क्या है, अच्छा सोर्स सी एन का है, जाना कहाँ पे, एम एन के पास में जानना है। हाँ एम एन तो हमारे पास में, हमारे एरिया में घूम फिर रहे हैं भाई साहब। तो फिर ये आपका फॉरेन एजेंट क्या करेगा, इट विल सिंपली फॉरवर्ड द पर्टिकुलर पैकेट टू द मोबाइल नोड, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा इनकैप्सुलेशन यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। तो वापस जाते हैं, अभी क्या बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म, चलो जो जो हम लोग ने पहले वाला पढ़े, इट वाज अबाउट द टनलिंग, द सेकंड इज रिगार्डिंग द इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is the mechanism of taking a packet consisting of packet header and data and putting it into the data part of the new packet। तो जाहिर बात है, मतलब वो घूम फिर के वही चीज है, लेकिन यहाँ पर एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखा है, और हम लोग ने बोल दिए एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट लगा दिए, ठीक है। The reverse operation, taking a packet out of the data part of another packet, is called decapsulation। अब जाहिर बात है, ये भी आपको पता है कि जब इनकैप्सुलेशन इस एंड पे हो रहा है, जब आपका इनकैप्सुलेशन टनल के एंट्री पॉइंट पे अगर हो रहा है, तो डिकैप्सुलेशन कहाँ पर होना है, टनल के एग्जिट पॉइंट पर होना है, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे इसका क्या होगा, डिकैप्सुलेशन। तो डिकैप्सुलेशन इंक्लूड व्हाट, डिकैप्सुलेशन विल बी रिमूविंग द आउटर पैकेट। तो रिमूविंग आउटर पैकेट, उसको निकालेंगे, देखेंगे अंदर से तो कुछ और निकला है। सो डिकैप्सुलेशन विल बी डन एट द एंड पॉइंट। Encapsulation and decapsulation are the operation typically performed when a packet is transferred from a higher protocol layer to the lower layer, or from a lower to the higher। वो छोड़ो चलो। Here these functions are used within the same layer। तो बहरहाल encapsulation and decapsulation are done at the entry point and at the exit point respectively। Okay। सो ये हो गया हमारा टनलिंग एंड इनकैप्सुलेशन। पूरा डिटेल में तो हम लोगों ने डायग्राम में देखा है, उसके कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। है हमारे पास में 5 मिनट है, तो अभी लास्ट एक क्लास टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज रिवर्स टनलिंग। एट फर्स्ट ग्लांस, अच्छा मैंने आपको रिवर्स टनलिंग का क्या रीजन था वो भी बताया, अब यहाँ से देखते हैं, उसको एक बार रिपीट कर लेंगे। At first glance, the return path from the mobile node to the CN looks quite simple. The mobile node can directly send its packet to the CN as in any other standard IP situation. So as you know that, कहाँ है भाई, हाँ, as you know that your mobile node can send, अच्छा यहाँ तो पैकेट मिल गया भाई साहब को, मोबाइल नोड हैज रिसीव द पैकेट, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द रिप्लाई, ओके, व्हाट अबाउट द रिप्लाई, द पैकेट विच हैज ऑलरेडी सेंट बाय द करस्पॉन्डेंट नोड, योर मोबाइल नोड हैज टू सेंड द रिप्लाई आल्सो, ओके। अब रिप्लाई तो आपको बस सिंपल लग रहा है कि देखो ये स्टेप नंबर 4 दिख रहा है, यहाँ से रिप्लाई। अभी 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 इनका इनका सहारा क्यों लेना, अब इनका सहारा है, दैट इज योर होम एजेंट का सहारा क्यों लेना। if you are having the address of the correspondent node directly with you, then why you are going to take the help of this foreign agent and home agent। तो फॉरेन एजेंट के थ्रू जाएगा, लेकिन मतलब वो तो यहाँ से तो जाना ही है, बिकॉज दिस इज द राउटर विच इज कनेक्टेड टू द फॉरेन नेटवर्क। सो एवरी पैकेट विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस फॉरेन नेटवर्क, every packet which is coming out of this foreign network will has to pass through this home agent only, sorry, foreign agent only। तो हर किसी पैकेट को यहीं से पास होके जाना है। हर किसी फॉर एग्जांपल कोई दूसरा मोबाइल नोड है, उसको यहीं से पास होके जाना है। कोई और मोबाइल नोड है, इट हैज टू पास थ्रू द सेम राउटर, ठीक है। तो सबको सेम राउटर के थ्रू होकर जाना है, ओके। The destination address in the packet is that of the CN, and you know that कि the destination was, पहले पैकेट में सोर्स कौन था, CN था, ठीक है, इनिशियली CN था, ठीक है। तो अब जब रिप्लाई जाएगा तो रिप्लाई किसको जाएगा, जो जो कि मतलब सोर्स था, ठीक है। और सोर्स कौन था, CN था, दैट इज करस्पॉन्डेंट नोड, ओके। इफ द if the source was the correspondent node, then हमारा यहाँ पर अब हमारा डेस्टिनेशन, जब हम लोग रिप्लाई पैकेट भेजेंगे, तो हमारा जो जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा, हमारा डेस्टिनेशन जो रहेगा, दैट डेस्टिनेशन विल बी द CN, दैट इज करस्पॉन्डेंट नोड। मैं भी इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ आप लोग के चक्कर में। सी, दिस इज द मोबाइल नोड, एंड व्हेन इट विल सेंड द रिप्लाई,
When it will send the reply, it will send the reply directly to the correspondent node. ठीक है, तो जब मोबाइल नोड जब रिप्लाई का पैकेट बनाएगा, सी दिस इज द रिप्लाई पैकेट, मैं कर रहा हूँ रेडी। ओके, सो दिस इज द डेटा, दिस इज द हेडर। ओके, तो ये रहा हमारा हेडर। ओके, और ये रहा हमारा डेटा। ठीक है, ये पैकेट हमारा मोबाइल नोड रेडी करेगा एज अ रिप्लाई। एंड व्हाट डज दिस हेडर विल कंटेन? हेडर विल कंटेन एट द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, सोर्स किसका डालेगा? सोर्स डालेगा हमारे एम खुद अपना डालेगा, बिकॉज ही इज द सोर्स। और डेस्टिनेशन किसका डालेगा? डेस्टिनेशन इंस्टीड ऑफ पुटिंग द डेस्टिनेशन एज अ होम एजेंट, वो किसका डालेगा? डायरेक्ट सीएन का डालेगा। ठीक है, उसको तो कुछ करना है नहीं, अब डायरेक्ट उसको सेंड करना है। बट देर आर सेवरल सीवियर प्रॉब्लम्स। बस ये छोटा सा उन्होंने पार्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया है, ज़्यादा डीप में नहीं है। सो बट वी हैव अ सेवरल सीवियर रीजंस और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस सिंपल सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोज प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द फायरवॉल, मल्टीकास्टिंग, टीटीएल, टाइम टू लीव। तो ऐसे जो है ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मैं आपको इन सब का समरी बता देता हूँ सिंपली। मैंने आपको आई थिंक इसके पहले 2-3 स्लाइड पहले, 2-3 सेशन पहले भी बताया था कि इफ द पैकेट इज मूविंग और पासिंग फ्रॉम दिस लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपका जो पैकेट है, तो पैकेट ने कौन सा रास्ता लिया था? पैकेट का रास्ता ये था। ठीक है, पहले वो होम एजेंट के पास में गया था, होम एजेंट से फिर होके, फिर टनल में से पास होके वो पहुंचा फॉरेन एजेंट के पास में, और फिर यहाँ से चला गया मोबाइल नोड को। तो इनिशियल द पाथ वाज दिस। ओके, और बाद में जब रिप्लाई आ रहा है, तो रिप्लाई कहाँ से आ रहा है? रिप्लाई डायरेक्टली आ रहा है। यू कैन सी द रिप्लाई का पाथ, द रिप्लाई पाथ यहाँ से आया है। ठीक है, तो रिप्लाई पाथ यहाँ से आ गया। तो भाई साहब ये कंफ्यूज है, आपका फायरवॉल कंफ्यूज है। ओके, तो आपके जो है ना डिवाइसेस बीच में के कंफ्यूज है कि जब ये पैकेट जा रहा है तो आ क्यों नहीं रहा, उसका रिप्लाई आ क्यों नहीं रहा है? गेटिंग द थिंग्स। तो जब उसका पैकेट जा रहा है तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? रिप्लाई नहीं आ रहा है, और दूसरा आपका दूसरा पैकेट पहुंच जा रहा है। सो इट कॉजेज अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो फॉर ईच एंड एवरी पैकेट देर इज अ रिप्लाई ऑल्सो। ओके, और जब अगर रिप्लाई अगर कभी नहीं मिलेगा हमारे राउटर्स को, तो वो थोड़े से हो जाते हैं पागल। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम को, इसको एज अ सीवियर प्रॉब्लम बताया गया है, बिकॉज योर फायरवॉल वोंट एक्सेप्ट इट। अदरवाइज और क्या है, मल्टीकास्टिंग, इसके अंदर उसके डिटेल भी है आपके बुक में, वो बुक में से आप लोग रीड कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट वी हैव अ सीवियर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस वन, दैट वी आर सेंडिंग द डेटा from correspondent node to the mobile node via home agent and via foreign agent, but you are sending the reply directly to the correspondent node। तो ये उनको बात हजम नहीं हुई। तो इसके लिए फिर क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नया लाया गया जिसका नाम था रिवर्स टनलिंग। So reverse tunneling was added as an option to mobile IP in the new standard RFC का डॉक्यूमेंट है 3344। तो अकॉर्डिंग टू द रिवर्स टनलिंग क्या होता है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स टनलिंग में क्या होगा, यहाँ से डेटा आने के बजाय, मतलब डायरेक्ट डेटा सेंड करने के बजाय क्या करेंगे? रिवर्स टनलिंग। तो जो टनलिंग जो यूज करके आए थे उसी से वापस आएंगे, कि भाई सबको कंफ्यूजन ना हो कि भाई जिसके पास में, इसके पास में मिस्टर इंडिया वाली वॉच तो नहीं है कि जा रहा है तो जा रहा है तो नजर आ रहा है, और जब वापस जा रहा है रिप्लाई तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो उनको दिखाने के लिए कि देखो भाई हमारा पैकेट भी जा रहा है, हमारा रिप्लाई भी आ रहा है। तो हमारा पैकेट भी गया, और वही रास्ते से फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना रिप्लाई रिसीव करके फिर आपके सीएन को भेज देंगे। तो ये उनके लिए कर लिए, तो फिर वो बेचारे सुकून से बैठ गए। ओके, हाँ हाँ, अभी अभी तो ठीक है। सो दैट्स अ रिवर्स टनलिंग। ठीक है, इन बुक द आपके रिवर्स टनलिंग का थोड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड इट आउट फ्रॉम देयर आल्सो। ठीक है, जैसा अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको, तो यू कैन रीड द थिंग्स आउट एंड यू कैन गेट द थिंग्स। ओके, सो आई होप यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है, और इतना काफ़ी है आज के लिए भी। आई विल जस्ट क्लोज द लिंक। नो नो, आई डोंट वांट टू सेव। और यहाँ तक है, उसके बाद में फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द राउटिंग। ठीक है, इन CN, दैट इज इन कंप्यूटर नेटवर्क 5th सेमेस्टर, वी हैव done the routing algorithm, that is distance vector routing and link state routing. But in this we have two types of routing again. One is the DSDV, that is destination sequence distance vector routing, and the second one is dynamic source routing, DSR. Okay, so tomorrow, in tomorrow's lecture, we will learn these two routing algorithms. Okay, thank you so much. Link, yes madam.